Hello everyone, I am Deepika and today we are going to study Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. This chapter has been written by Nelson Mandela. Actually, this is an excerpt from Nelson Mandela's autobiography. Autobiography होती है जब आप अपनी लाइफ के बारे में लिखते हैं अपने आप. So, which is why this is an excerpt और ये लिखा गया है by Nelson Mandela himself. ये चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये बताता है अबाउट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो साउथ अफ्रीका में एग्जिस्ट करता था और जिस उस पॉलिटिकल सिस्टम को एक नाम दिया गया था विच वॉज कॉल्ड अपार्थीड क्योंकि वहां पे वाइट्स का रूल था. वाइट्स यूज टू बी द ओप्रेसर्स और जो आपके ब्लैक्स थे दे वर ओप्रेस्ड. मतलब जो ब्लैक्स थे दे वर कंसीडर्ड इंफीरियर. उनके पास कोई राइट्स नहीं थे किसी भी गवर्नमेंट या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में. दे डिड नॉट हैव एनी पावरफुल पोजीशन. So here, just the way it's said in these lines, Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. 3 सेंचुरी तक फॉर 3 सेंचुरी तक ऑलमोस्ट वाइट रूल था वहां पर. और उसके बाद नेल्सन मंडेला जो थे वहां के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने. और ये जो इलेक्शन हुए थे उसमें उन्होंने फाइट किया था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिसमें उन्होंने 252 वोट्स जीते थे अपने लिए, सीट्स आउट ऑफ 400. एंड दीज वर द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. मतलब वहां लोगों के फॉर पीपल बाय पीपल जिसलिए बोलते हैं, लोगों ने अपने आप चूज किया था अपना लीडर अपने लिए. सो विच इज वाई दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट जहां पे हम जानेंगे किस तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रोमिनेंट था साउथ अफ्रीका में. एंड दिस पॉलिटिकल सिस्टम वाज टैग्ड और नेम्ड एज अपार्थीड. So let's get started with the chapter now. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. So हमें बताया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में किस तरीके से नेल्सन मंडेला was surrounded by all dignitaries and world leader, as in जितने भी important prominent personalities थी all over the world internationally, they had come to South Africa. और ये सेरेमनी एक हो रही थी जहां पे जो आपके फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला was about to take his oath. The ceremonies took place in the lovely stone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria, which you can see in this picture on left hand side. ये आपका एक amphitheater है. This is open air. मतलब यहाँ पे कुछ भी covered नहीं है. लोग बैठेंगे और यहाँ बीच में president will take the oath and others as well. For decades, this had been the seat of white supremacy. For decades मतलब सालों साल तक यहाँ पे white supremacy थी. Whites थे जो अपनी oath लेते थे और उन्हीं का ही रूल था हर तरीके से. Now it was the site of rainbow gathering of different colors. Rainbow gathering of different colors, and people had come from different countries. People were of different color. They were just not whites. They were black. They were brown. They were different shades of color, skin color. And nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial गवर्नमेंट. और ये पहली आपकी साउथ अफ्रीका की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जो कि नॉन रेशियल थी. इट वॉज नॉट इन द फेवर्स ऑफ ब्लैक और वाइट. इट वॉज न्यूट्रल. इट वॉज फॉर पीपल एंड इट वॉज डेमोक्रेटिक जहां पे लोगों ने अपने लीडर को खुद चूज किया था. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. So he was there to take the ceremony with his daughter. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. So there were people who were taking oath, and there was this first person who had gone on to the podium to take the oath was second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president, and then it was his turn because he was the first president, right? When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of republic and its people. So he is telling us कि उन्होंने जब oath ली उस वक्त उन्होंने बोला, devote किया कि he is going to follow the constitution, जो वो अपने आप को devote करेंगे अपनी life को for the well-being, अच्छे के लिए, भले के लिए, अपने लोगों के, अपने देश के लोगों के लिए. To the assembled guests and the watching world I said, so here starts his oath. Today all of us do by presence here confer glory and hope to newborn liberty. Newborn liberty क्योंकि अब finally South Africa free हुआ था white rule से. Now people will be treated equally. So that's what he is referring to. Out of the experience of an extraordinary human disaster. आपका extraordinary human disaster यहाँ signify कर रहा है जो whites ने rule किया था, oppress किया था black को, उनको as human treat नहीं किया था. Blacks did not have any right.
सो इट्स रेफरिंग टू दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो वो ह्यूमंस थे जिन्होंने डिजास्टर क्रिएट किया था ऑन अदर ह्यूमन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रेस, बिकॉज दे वर ब्लैक, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि काफी लंबे दौर तक चला। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। सो अब वो बोल रहे हैं कि जितना उन्होंने सहा ब्लैक्स ने, अब फाइनली व्हेन दे आर फ्री, एक ऐसी सोसाइटी बननी चाहिए जिसके ऊपर सारी की सारी ह्यूमैनिटी, सारी इंसानियत विल बी प्राउड, गर्व करेगी। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host of nations of the world on our soil. कि जिन लोग, जब इनके पास कोई ऐसा लॉ नहीं था, when they did not have any right, they did not have any power, तो उनके कोई इतने strong international connections नहीं थे. Now they had invited so many people internationally to be the witness while the first president of South Africa takes the pledge. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. So he's thanking all the people, जितने भी लोग बड़े लोग आए हैं वहाँ पे, leaders, world leaders, and the dignitaries, सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, एंड ही सेइंग कि वो बस विक्ट्री उनके लोगों के लिए नहीं है, इट्स अ कॉमन विक्ट्री, एक कॉमन विक्ट्री है ऑफ जस्टिस, की जस्टिस मतलब इक्वालिटी नाउ विल बी देयर, फॉर पीस देयर विल बी नो वॉर, नो फाइट, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, दैट ह्यूमन विल बी ट्रीटेड इक्वली, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, सो ह्यूमंस के सेल्फ स्टीम के लिए। We have at last achieved our political emancipation. Now they are politically free. They have the power. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. So he's saying कि अब जब हमारे पास power है and we are free, वो चाहते हैं कि हमारे लोग जितने भी पोर हैं, डिप्राइव्ड हैं अपने राइट से, या किसी भी तरीके से सफर कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, वो सब अब अबॉलिश हो जाना चाहिए, वो सब अब खत्म हो जाना चाहिए। Never, never, and never. Three times the word never has been used. It means how much emphasis is putting on this word. वो चाहते ही नहीं है कि जो हुआ है blacks के साथ उनकी country में, वो कभी भी किसी के साथ कहीं पे भी हो. Again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. So he's saying एक human दूसरे human का oppress करे उसको, मतलब डिस्क्रिमिनेट करे, गंदे से ट्रीट करे, इल ट्रीट करे। वो चाहते नहीं कि कभी भी इस तरीके की हिस्ट्री क्रिएट हो, जो हिस्ट्री एक बार है कभी भी वो अपने आप को दोहराए। The sun shall never set on so glorious a human achievement. So he's saying कि अब जो फाइनली वो सन देख रहे हैं, मतलब हैप्पीनेस जो है वो कभी भी ढलनी नहीं चाहिए। लेट फ्रीडम रेन, कि अब जो फ्रीडम है जो उनको मिली है, जो लिबर्टी है, वो अब हमेशा रहनी चाहिए वहां पे, वो कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। गॉड ब्लेस अफ्रीका। So this was his speech. Now he says in the next paragraph, a few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular uh, array of South African jets, helicopters, and troops carriers roared in perfect formation over the Union buildings. जिस तरीके से हम लोग भी देखते हैं, हमारे यहाँ परेड होती है या फिर कभी भी एरोप्लेन शो होता है, फॉर एग्जाम्पल ऑन 26th of January. So similar thing was happening after taking the oath, when they all lifted their eyes, when they looked at the sky, so they saw aeroplanes flying in the air. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. So he's saying कि वो बस एक मिलिट्री की फोर्स का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था कि हाउ पावरफुल द मिलिट्री इज, बट जो मिलिट्री की एक लॉयल्टी है डेमोक्रेसी के लिए, जो अब एक फेयरली एक प्रेसिडेंट चूज किया गया है फाइनली साउथ अफ्रीका में, वो लॉयल्टी उन लोगों के लिए थी जिन्होंने चूज किया, एंड फॉर द प्रेसिडेंट, सो फॉर द एंटायर डेमोक्रेसी बेसिकली। Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. So now जो higher officials थे South African Defence के और Army Police के, वो सब उनके पास आए, उनको salute किया, and they promised their loyalty, that they're going to be always loyal to him and the democracy. I was not unmindful of the fact that not only so many years before they would not have saluted but arrested me. So बोल रहे हैं कि मैं कहीं पर भी नहीं भूला था कि अगर ये कुछ साल पहले यही सेम चीज होती कि मैं उनके सामने खड़ा होता, तो मुझे सल्यूट नहीं कर रहे होते, बल्कि वो मुझे अरेस्ट कर रहे होते। Finally, a chevron of Impala just left a smoke trail of black, red, green, blue,
gold of the न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. सो ये सारे के सारे कलर्स जो न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग था उसमें थे. एंड आप ये देख सकते हैं पिक्चर में ऑन योर राइट हैंड साइड किस तरीके से जेट्स जाते जाते कुछ कलर्स लीव बिहाइंड करें. तो इस तरीके से जो जेट्स वहां पे उड़ रहे थे, they were they were disposing of the colors black, green, red, blue, gold. So these were the colors of the new South African flag. The day was symbolized for me by the playing of two national anthems. Two national anthems, first जो आपके blacks गाते थे, दूसरे जो whites गाते थे. और इस पैराग्राफ में बताया गया कि किस तरीके से दोनों के दोनों जो रेस के लोग थे, they were not comfortable singing each other's national anthem. ना ही उन्हें वो याद थी. And because कुछ टाइम तक वो एक दूसरे से नफरत करते थे. Whites because they did not consider blacks equal, and blacks because they were oppressed by the whites. So इसलिए दोनों को एक दूसरे की ना ही एंथम पता थी और ना ही उनको ये अभी बहुत अनईजी लग रहा था ये गाने में. बट Nelson Mandela says that they soon would know the words by heart. So he is hoping that there will come a time when everything will be fine, sorted, and national anthems भी वो दोनों एक दूसरे की बहुत स्मूथली और बाय हार्ट कर लेंगे और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक दूसरे की नेशनल एंथम गाने में. So he is hoping for a better tomorrow basically. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. जिस दिन inauguration था, जिस दिन वो ceremonies अपनी ले रहे थे, he was overwhelmed, मतलब वो बहुत खुश थे ये देख के कि किस तरीके से history में इतने struggles के बाद finally the blacks were free. In the first decade of 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. So he's saying जो एक war had taken place before his own birth, which was Anglo-Boer War. The white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. तो पूरे अपने ही जगह के लोगों ने जो white थे उन्होंने discriminate करना शुरू कर दिया जो Africans थे but black skin थे. So अपने ही land पे अपने ही लोगों से किस तरीके से discrimination की एक series शुरू हुई उस time से is talking about that. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. So he's saying कि वो जो पूरा structure था, जो पूरा discrimination था, ना ऐसा कभी किसी society के साथ उससे पहले हुआ था. And he's hoping कि कभी हो भी ना, because it was very inhuman, कि मतलब वो बिल्कुल भी इंसानियत जैसा नहीं था और ना ही वो बिल्कुल अच्छा था. It was harshest, very tough. आप जिस तरीके से right hand side पे आप picture देख सकते हैं, for use by white persons, तो वहां पे बोर्ड लगा दिए गए थे कि if you are black you cannot use it. तो there were many places, many things which black could not do. जो इनके एक bare minimum necessities जो होती हैं उनके लिए भी blacks had to fight. जिस तरीके से इंडिया में बहुत सारी चीजें हैं रिलीजन कास्ट को लेके, बहुत सारे अप्रोर होते रहते हैं, मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट होते रहते हैं. उस तरीके से वहां पे भी व्हाइट्स और ब्लैक के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस थे और काफी ज्यादा हार्श प्रैक्टिसेस यूज हुई थी whites by the whites against the blacks. Now in the last decade of the 20th century and my own eighth decade as a man, matlab probably he's 80 years old now, so which is the eighth decade. A decade consists of 10 years. That system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of the color of their skin. So it's saying कि finally overturn हो गया है, मतलब सब कुछ पलट चुका है और वो टाइम अब जा चुका है, क्योंकि अब एक ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पे सबके पास राइट्स हैं और फ्रीडम है, इक्वल हैं सब, regardless of their skin color, be them black, white or whatever color, but they all are equal now. The day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. So he's saying कि ये जो आज दिन आया है एक डेमोक्रेटिक दिन इन साउथ अफ्रीका और जिस तरीके से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हुई है एंड ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, वो बस उनकी वजह से ही नहीं आया. देयर आर सो मेनी पीपल who sacrificed their everything, their lives to for this day, क्योंकि उन्होंने इतना फाइट किया अपार्थाइड को अबॉलिश करने के लिए that they lost everything, so probably they are even dead. So he's saying कि उनके करेज को और उनके किसी भी सेक्रीफाइस को आप किसी भी तरीके से कॉम्पनसेट नहीं कर सकते हैं. I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. So he's saying कि एक पूरी सीरीज ऑफ लोग थे जो लड़ते आ रहे थे अपार्थाइड को खत्म करने के लिए अपनी कंट्री से, और इसमें ही इज वन पार्ट ऑफ इट. तो उससे पहले से ही सीरीज चलती आ रही थी एंड देन ही बिकेम वन ऑफ देम. African patriots mean people who love their country, who fight for their country. That long and noble line ended and now began again with me. So he's saying कि वो खत्म हुई और अब वो शुरू हुई है मुझसे.
I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what the sacrifices had wrought. So he's saying कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि किस तरीके से उनके fights और sacrifices की वजह से आज ये दिन आया है और they are not there to see it or witness it, probably because they are already dead. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. So he's saying कि जो apartheid एक political system था जहाँ पे discrimination होता था on the basis of skin color, वो इतना ज्यादा बेकार था कि एक lasting, मतलब वो एक जो उसका इम्पैक्ट है वो लास्टिंग है, बहुत टाइम तक रहने वाला है. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन. सो ही सेइंग एटलीस्ट अगर जनरेशन नहीं बिताएंगे उसमें तो कम से कम ईयर्स तो उससे रिकवरी होने में बिताएंगे ही लोग, क्योंकि इतना गहरा इम्पैक्ट था, इतना ज्यादा डीप इम्पैक्ट था, जो हर्ट था लोगों का, जो पीपल वो सो हर्ट कि वो इतना जल्दी जाने वाला नहीं है. दे वर लिटरली वुंडेड डीपली. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, that was that it produced the Oliver Thambos. Now he's naming so many people who sacrificed their lives, who sacrificed everything they had just to fight against apartheid. So these were the people that he's talking about कि इतने extraordinary courageous थे वो कि और उनमें मतलब they were so selfless that they gave everything away whatever they had just for the people, for just for the people and their country. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. So he's saying जिस तरीके से जिस कदर सबको oppress किया गया था, गंदे से treat किया गया था, ill treat किया गया था, शायद वहीं से ही इतना courage आता है that you become someone कि आप इतने ज़्यादा that you become someone who wants to give everything away for the safe, for the betterment of the country and the people. My country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil. So he's saying, he's referring to all the minerals and gems जो शायद उनकी धरती के नीचे हैं, उस मिट्टी के नीचे हैं साउथ अफ्रीका में. But I have always known that its greatest wealth is people. But he's saying कि सबसे ज्यादा important जो है उनकी कंट्री में वो है उनके लोग, finer and truer than the purest diamonds, जो कि beautiful हैं और better हैं और अच्छे सच्चे हैं than the purest diamond. So he's comparing them to with a purest diamond, to a purest diamond. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. So he's saying कि वो जो लोग थे जिन्होंने इतना courage दिखाया था, जिनके नाम अभी उन्होंने mention किए उस पैराग्राफ में, उस he's saying कि शायद मैंने उनसे सीखा है कि what courage is, हिम्मत होती क्या है. Time and again I've seen men and women risk and give their lives for an idea. So he's saying कि I've seen people कि किस तरीके से वो सब कुछ sacrifice कर देते हैं एक ऐसे idea में जिसमें वो विश्वास करते हैं. I have seen men stand up to attacks and torture before without breaking and showing a strength and resilience that defies the imagination. So now he's saying कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जिनको कितना भी टॉर्चर किया जाता है लेकिन फिर भी वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं छोड़ते हैं. They do not, they never try to become what they are not. They're always following their goals, their ideas, and never deviating from their path. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. So he's saying every one of us is human. सबके अंदर फियर है लेकिन जो भी करेजियस बन जाते हैं, करेज इज द रिजल्ट ऑफ ट्रायम्फिंग ओवर योर फियर. जिस दिन आप अपने डर को हरा देते हैं उस दिन आप करेजियस बन जाते हैं. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर. सो इज सेइंग कि एक ब्रेव मैन वो है जो अपने फियर को कॉन्कर कर लेता है, अपने फियर को जीत लेता है. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. So it's saying कि कोई भी पैदा नहीं होता है hate करके किसी को भी just because that person is not of the same skin या फिर उसका background उसके हिसाब से नहीं है या फिर उसका religion किसी इंसान को पसंद नहीं है. For example, we are not born with hatred. हम एक ऐसी society में रहते हैं जहाँ पे हमारे minds में instill की जाती है hatred against each other. So he's referring to the same thing. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. Very beautiful line. He's saying कि अगर हम इंसान को नफरत करना सिखा सकते हैं तो प्यार करना तो बहुत ही easily सिखा सकते हैं, because that's something which comes naturally. क्योंकि human का innate nature में ही प्यार करना है, that a human is always filled with emotions and love. अगर आप नफरत सिखा सकते हैं तो प्यार सिखाना तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है. प्यार तो एक ऐसी चीज है जो एक ह्यूमन बहुत ही इजीली सीख सकता है. Even in the grimace means very tough, bleak times and hard times in prison when my comrades, okay, Nelson Mandela was in prison for 27 years. So that's what he's referring to. Even in the grimmest times in prison, when he was in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, मतलब उनको इतना torture किया जाता था, pushed to our limits कि आपको बहुत हद तक torture किया जा रहा है.
I would see a glimmer of humanity. Glimmer means a hint of humanity in one of the guards. जो वहां पे guards होते थे उनमें थोड़ी सी उनमें सहानुभूति दिखती थी guard में भी. तो वो बोलते हैं perhaps just for a second but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Extinguished means खत्म नहीं की जा सकती. तो he's saying अगर एक छोटी सी भी झलक इंसानियत की मुझे दिखती थी एक गार्ड के अंदर जब हमें इतना टॉर्चर किया जाता था, मेरे अंदर की इंसानियत तब भी जिंदा रहती थी, उसके बाद भी जिंदा रहती थी. वो बोल रहे हैं कि कभी भी जो आपके अच्छे आइडियाज हैं, जो आपके दिमाग में अच्छी चीजें हैं, उनको छुपाया जरूर जा सकता है लेकिन उनको कभी खत्म पूरे तरीके से नहीं किया जा सकता. In life, every man has twin obligations: obligation to his family, his parents, to his wife and children. He has an obligation to his people, his community and his country. So he's saying एक इंसान को दो obligations होती हैं, दो responsibility होती हैं. एक तो अपनी family की तरफ, अपनी wife, अपने बच्चों की तरफ, और दूसरी अपनी community, अपनी country की तरफ, अपने लोगों की तरफ. In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. So इस saying एक जो normal society होती है जहाँ पे लोगों के लिए सबके लिए एक जैसे rules हैं, norms हैं, वहां पे ये दोनों obligations को fulfill करना कोई बड़ी बात नहीं है. सब करते हैं अपने हिसाब से, अपनी ability जितनी होती है उनकी उस हिसाब से. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color. मतलब जिस टाइम पे मैं पैदा हुआ था अफ्रीका में और जिस कलर के साथ दोनों की दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करना इम्पॉसिबल था. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. So, एक इंसान को साउथ अफ्रीका में if he was a black, अगर वो एक नॉर्मल इंसान के साथ जैसा भी जीना चाहता था तो he was punished and isolated, मतलब अलग रख दिया जाता था, पूरी सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था. तो बेसिकली सिचुएशन इतनी बुरी थी कि एक इंसान एक नॉर्मल इंसान की लाइफ भी नहीं जी सकता था बिकॉज जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था अगेंस्ट ब्लैक, इट वॉज वेरी बैड, वेरी हार्श. दे वर ट्रीटेड सुपर बैडली. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably मतलब कि किसी चीज को जो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जो होगा ही होगा, ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of hypocrisy and rebellion. So he's saying कि अगर एक इंसान चाहेगा अपने लोगों को और कम्युनिटी को सर्व करना, उसको पूरी दुनिया से छुप के रहना पड़ेगा, अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा. क्यों? अगर वो छुप कर नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली उसको मार दिया जाएगा. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. So इस saying कि शुरुआत में मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था कि मैं अपने लोगों को सर्व करने वाला हूँ या अपनी कंट्री के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करने वाला हूँ, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने चूज किया लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ. इट्स ऑल अबाउट पीपल नाउ. सो दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि दोनों आप ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर सकते थे, या तो अपनी फैमिली चूज कर सकते थे या अपने पीपल चूज कर सकते थे. उन्होंने जब पीपल चूज किए सो ही लेफ्ट हिज फैमिली. अपनी फैमिली के पास ना ही उनके पास टाइम था और ना ही वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर पा रहे थे बिकॉज ही हैड टू लिव अ लाइफ ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन मतलब किसी चीज को ना मानना, किसी चीज के लिए लड़ना. सो सिमिलर वाज हैपनिंग हियर विद हिम. I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know. So he is saying in this paragraph कि ऐसा नहीं था कि मेरे को कभी भी फ्रीडम चाहिए थी, कि मैं उसके लिए क्रेव कर रहा था कि मुझे फ्रीडम दो. नहीं, मैं पैदा ही फ्रीडम के साथ हुआ था. जितनी मैं फ्रीडम समझ सकता था उतनी, कि मैं अपनी मदर के साथ अपने फील्ड्स में जा सकता था, मैं कहीं पे भी स्विम कर सकता था. सो इज गिविंग ऑल दिस एग्जाम्पल्स कि वो बुल्स को स्लोली मूव करके ले जा सकते थे कहीं पे भी. एंड ही डिड नॉट अंडरस्टैंड. उस टाइम तक उन्हें लगता था कि अगर आप लॉज फॉलो कर रहे हो तो उसमें तो कुछ भी आपको नॉर्मल इंसान की लाइफ जीने से कोई रोक ही नहीं सकता. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. So after he grew up, तब उन्हें लगने लगा कि जो वो बचपन में freedom enjoy करते थे वो तो एक illusion था, वो तो सच्चाई थी ही नहीं, वो एक झांसा था. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जब वो एक young man में convert हुए, when he grew up into a man, तब उन्हें realize हुआ कि उनके पास तो उनकी कोई freedom है ही नहीं, क्योंकि वो अपने हिसाब से तो कुछ भी कर नहीं सकते हैं. Because he says here, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential. कि आप एक normal basic normal एक life जो आप जीना चाहते हो अपने potential के हिसाब से, एक नौकरी करना चाहते हो आप, वो आप नहीं कर सकते हो. Of earning my keep, of marrying and having a family. एक normal इंसान की जो ख्वाहिशें होती हैं, to have a good job, to have a normal income, to be able to marry someone of your choice, to have a family, ये सब भी उनके
हिसाब से नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके पास फ्रीडम ही नहीं थी किसी भी तरीके से चूज करने की. When then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. So he's saying ऐसा नहीं था कि बस मैं ही free नहीं था. There were people, brothers and sisters. He's referring to people of his own country who were of the same color. He's saying कि वो भी free नहीं थे. I saw that it was not just my freedom was curtailed. Curtailed means stopped control, but the freedom of everyone who looked like I did. So he's saying कि बस एक मेरी फ्रीडम नहीं थी जो कंट्रोल की गई थी या ले ली गई थी, बट वो सबकी फ्रीडम थी जो भी मेरे जैसे दिखते थे, एज इन जो मेरे जैसे ब्लैक दिखते थे. दैट इज व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. उस टाइम पे उन्हें लगा कि उन्हें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पे ज्वाइन करना चाहिए, सो दैट ही कैन फाइट फॉर द राइट ऑफ हिज पीपल. And then and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger of the freedom of my people. So he's saying कि जब उन्होंने वो ज्वाइन किया, that was the moment उन्हें रियलाइज हुआ कि वो बस मेरी फ्रीडम के लिए, वो अपनी फ्रीडम के लिए नहीं लड़ रहे हैं. ही इज फाइटिंग फॉर द फ्रीडम of his people, of all the people black in his country. It was his desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. So he's saying कि जिस तरीके से वो फाइट में घुस चुके थे, कि वो चाहते थे कि जितने भी लोग हैं उनके कलर के दिखने वाले, उनको डिग्निटी मिले, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, मतलब उस चीज के लिए, सेल्फ स्टीम के लिए उन्होंने लड़ना शुरू किया. एंड दैट्स व्हेन ही ट्रांसफॉर्म, मतलब तब उनके कैरेक्टर में चेंज आया. फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन. जब वो एक डरपोक सहमे से रहते थे, उससे वो एकदम बोल्ड बन गए, बहुत हिम्मत वाले बन गए. दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. कि जो एक इंसान लॉ फॉलो करता था पूरे तरीके से, अब वो एक क्रिमिनल था. एंड दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम. सो जिसके पास एक बहुत प्यारी फैमिली थी, सब कुछ था, अब एक वो एक ऐसा इंसान था जिसके पास अपना खुद का घर नहीं था. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्ग. जिस इंसान को जीना पसंद था, उसने एक मॉन्ग की तरह जीना शुरू कर दिया था, कि उसने सब कुछ त्याग दिया था, बिकॉज ही वॉज फाइटिंग फॉर द पीपल, फॉर द राइट्स ऑफ हिज पीपल. सो ही लेफ्ट एवरीथिंग. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. So he's saying कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज्यादा virtuous हूँ या फिर self sacrifice हूँ, selfless हूँ. मैं मैं किसी भी ऐसे इंसान की तरह हूँ जो यहाँ पे present है, जो मेरे साथ है, मेरी हम उम्र के हैं. लेकिन जिस तरीके से मैंने देखा कि जो छोटी छोटी फ्रीडम थी वो भी एक इंसान को नहीं मिल रही थी, दैट्स व्हेन ही स्टॉप्ड एंजॉयिंग एनीथिंग दैट ही हैड. चाहे वो छोटी फ्रीडम ही क्यों नहीं थी, वो भी इन्होंने एंजॉय करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें उसमें खुशी नहीं मिल रही थी देखकर कि कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी कंट्री में. फ्रीडम इज इनडिविजिबल. द चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वेयर द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ देम. द चेन्स ऑफ ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. सो इज सेइंग कि किसी में भी, किसी को भी किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा था लोगों को वहां पर, वो कंट्रोल बस उन लोगों को नहीं किया जाता, वो कंट्रोल मेरे पर भी किया जाता. तो बेसिकली सेइंग कि किस तरीके से जो लोग सफर कर रहे थे, इट वाज अ, उस सफरिंग में वो सब यूनाइटेड थे, कि मतलब किसी भी तरीके से ब्लैक्स को किसी भी तरीके का पावर नहीं दिया जा रहा था. सो ही इज सेइंग कि एक इंसान की फ्रीडम गई, सबकी फ्रीडम गई. और ये देख के मुझे लगा कि मैं कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकता हूँ जब तक हमें एक लाइफ नहीं दी जाएगी ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. So he's saying oppressor कोई भी होता है, वो इंसान जो दूसरे इंसान को इल ट्रीट करता है, गंदे से ट्रीट करता है, इक्वली ट्रीट नहीं करता है. जैसे कि यहाँ पे व्हाइट्स ने रूल किया था ब्लैक के ऊपर, सो दे व्हाइट्स वर द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड वर द ब्लैक्स. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. So बहुत ही beautifully now he's concluding the lines and वो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से एक ऑपरेस्ड जो इंसान है, जिसको दबाया जा रहा है, जिसका हक छीना जा रहा है, उसको फ्रीडम चाहिए, उसी तरीके से जो ऑपरेसर है, जो दूसरे इंसान को दबा रहा है, हक जता रहा है, उसको भी फ्रीडम चाहिए. उसको फ्रीडम चाहिए नफरत से, बिकॉज इज द प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. उसके अंदर इतनी नफरत है, इसीलिए वो दूसरे इंसान को ऑपरेस कर रहा है. जिस दिन वो अपनी नफरत खो देगा, उस दिन वो दूसरे इंसान को परेशान करना बंद कर देगा. सो इज सेइंग कि जिस तरीके से ब्लैक्स को चाहिए था लिबरेशन, उस तरीके से व्हाइट्स को भी लिबरेशन चाहिए था फ्रॉम हेट्रेड. व्हाइट्स को भी उतनी ही लिबर्टी की जरूरत थी.
ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजराइज एंड नैरो माइंडेडनेस, कि मतलब उस प्रेजराइज होता है कि आप प्री कंसीव नोशन किसी के बारे में सोच रहे थे कि ये इंसान गंदा है, आपको ऐसा लगता है तो आपने बिना उससे बात किए डिसाइड कर लिया कि वो गंदा ही है. सो इसी तरीके से ऑप्रेसर्स जो हैं, जो वाइट्स हैं, दे वर नैरो माइंडेड, वो अपनी जो उनकी सोच थी उससे ज्यादा नहीं सोच पा रहे थे ब्लैक्स के लिए. और वो प्रेजुडाइज थे कि ब्लैक्स के अगेंस्ट जो उनके जितने भी उनके थॉट्स थे वो प्रेजुडिस थे, मतलब वो बिल्कुल भी ट्रू नहीं थे. I am not truly free if I'm taking away someone else's freedom, just as surely as I'm not free when my freedom is taken from me. So he so very beautifully is quoting here कि अगर मैं किसी और की फ्रीडम लूंगा तब भी मैं पूरी तरीके से फ्री नहीं होऊंगा. जिस तरीके से मेरी फ्रीडम ली गई थी उन लोगों ने, तो दोनों के दोनों वे में अगर आप ऑप्रेसर है और आप ऑप्रेस्ड है, दोनों ही आप लोग फ्रीडम का क्रेव कर रहे हैं विदाउट नोइंग. सो ही सेइंग कि अगर मैं मेरा कोई हक नहीं है कि मैं किसी और की फ्रीडम लेके फ्री रह सकूं. सो एवरीवन हैज द राइट टू बी फ्री. द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. सो ही सेइंग नाउ कि जो ऑप्रेसर है वो तो ऑब्वियसली अपनी ह्यूमैनिटी उसको रॉब कर दिया, उसे छीन ली गई है बाय द ऑप्रेसर. लेकिन ऑप्रेसर जो है, जो इल ट्रीट कर रहा है दूसरों को, जो दूसरे इंसान का हक छीन रहा है, उससे भी ह्यूमैनिटी उसकी रॉब कर ली गई है. अगर उसके अंदर ह्यूमैनिटी होती तो वो किसी को ऑप्रेस ही नहीं करता, वो किसी को इल ट्रीट ही नहीं करता. ही वुड हैव, इफ ही हैड बीन अ गुड पर्सन, ही वुड नॉट हैव ट्रीटेड द अदर पर्सन बैडली. सो इसलिए ऑप्रेस और ऑप्रेस्ड की जो डाइकोटमी है, इट्स वेरी ब्यूटिफुली रिटन इन दीज लास्ट लाइन. ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके से नेल्सन मंडेला ने अपने लोगों के लिए इतने अच्छे से फाइट किया, सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया जस्ट बिकॉज ही वांटेड, you know, equality, self respect and dignity for his people, justice for his people. तो आप कभी भी किसी चीज में डिटर्मिन्ड होते हैं, किसी भी चीज के लिए आप लाइफ में गोल सेट करते हैं, आप उसे जरूर पा सकते हैं अगर आप उसके लिए वर्क हार्ड करें. सो दैट वाज अ चैप्टर अबाउट, आई होप you understood the chapter, and if you did then please like the video, share it with your friends and subscribe to my channel. Don't forget to hit the bell icon. I'll see you soon with my next video. Thank you so much for watching. Much love.